start with zero order reaction, and its kinetics. We will derive its differential rate law, differential rate equation, and integrated rate law, and then we will find its half-life. After this, we will determine the rate equation for first order reaction. Similarly, its differential rate law and integrated rate law. Whenever we will talk about integrated rate law, it means you will have to apply some mathematical concept related to integration. This is not an extensive integration, but a very basic or simple integration. Only 3 to 4 different integral concepts we will use for determination of integrated rate laws for zero order reaction, first order and second order. Okay, so we will start from zero order reaction. Okay, suppose we have a reaction wherein you have A to P. A stands for reactant for with the concentration A, and then P is the product. Initial concentration means initial concentration. What do you mean by initial concentration? Concentration of a reactant when there is no reaction. Mean when time for that reaction is zero. Suppose for reactant A, the initial concentration is A. At that time there will be no product, and you will have zero concentration for product. After some time, mean T, you have X product. Mean X amount or X concentration of product has been formed. What does it mean? Mean there is a X concentration reduction, decrease from the initial concentration. So the initial concentration, after some time T, this concentration will become A, mean initial concentration, minus the amount of product that has been formed after time T. You can call it for certain period of time, that will be called your final concentration. Okay, clear? Now you have to write its rate law. वो हम कैसे लिखते हैं? Change in concentration of reactant with change in time is equal to K A raised to power 0. Zero means zero order reaction. Because you are dealing with the decrease in concentration of reactant, so we need to write negative sign. नेगेटिव साइन क्या बताता है? शाहरुख रिडक्शन होगी, डिक्रीज होगी. ओके, तो यहाँ पे आप के नॉट भी लिख सकते हैं. दैट विल इंडिकेट रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये भी चीज ठीक है. ओके, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखना चाहें तो फिर रेट लॉ कैसे होगा? विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t, वो क्या होगा? dx over dt is equal to
नॉट a minus x, ठीक है। Whenever we have 0 in the power, then it's what will be the its result? 0। वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो कैसे 0 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, dx over dt is equal to k naught multiplied by 1। क्लियर? Okay, this equation will become dx mean change in concentration of product over time is equal to k naught. This is your differential rate equation for what? For zero order reaction। इस क्वेश्चन के मीनिंग्स क्या आ रहे हैं आपके पास? What does it indicates or explain? हम फिजिकल केमिस्ट्री में या फिजिक्स में इक्वेशन के साथ तो खेलते हैं, अगर अल्टीमेट पर्पस इक्वेशन ड्राइव करना नहीं है, क्या है? इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तो वो अब इससे आप क्या मीनिंग ले रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम दिस रेट ऑफ रिएक्शन, जो चीज इक्वेशन में नहीं है, इट मीन्स कि दैट इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पार्ट, दैट टर्म। ठीक है, उस टर्म से क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। मीन कि अब आपके पास ये क्या है कि रेट, इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए की कंसंट्रेशन 1 है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं रेट, ये भी आपके पास क्या है, रेट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या इस इक्वेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कहीं नजर आ रही है आपको? नहीं। मीन कि दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि वो है ही नहीं उसमें। तो सिमिलरली ये भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। मीन कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट। तो ये इसका एक जो है वो आपका एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया कि रेट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ जीरो ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो एट एनी टाइम, मेरा क्वेश्चन है आपसे अमित भाई, एट एनी टाइम व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? मीन कि किसी भी टाइम पे अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? वही होगी जो कि रेट की होगी। तो ये चीज आपको डेफिनेशन ये भी बताती है कि रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है, क्योंकि हमारा तो मकसद रेट कांस्टेंट से होता है ना, तो रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, वही होगा एट एनी टाइम जो कि उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मगर बाकी ऑर्डर्स में इस तरह नहीं होता। ठीक है ना, जीरो ऑर्डर के लिए आपको ये फील हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वही होगा जो रेट कांस्टेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिख देता, मतलब मैं यहाँ पे कोई और m लिख देता हूँ या n लिख देता हूँ, एनी टर्म मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या मैं कोई टर्म यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन कुछ और बन जाएगा, उसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक समझ आ गई? तो अब इक्वेशन क्या बता रही है आपको, ये आपको पता लग गया कि ये दिस इक्वेशन, रेट इक्वेशन इंडिकेट्स दैट रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन आया कि भाई अगर मैं फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डबल करता हूं तो रेट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा?
ठीक है, अब इसको एक और एंगल से हमने देख लिया। तो अब इसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज या आता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता हूँ एट एनी पर्टिकुलर टाइम, ठीक है जी, इसका रेट जो है वो रिएक्शन इस रेट से मूव कर रहा है, तो बताएं उस वक्त उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा? सेम कांसेप्ट भी है, मगर हम इसको डिफरेंट स्टाइल से, अब यहीं पे मैं न्यूमेरिकल भी दे देता हूँ बच्चों को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कि भाई ये चीज़ है, बताएं कि वो रेट कांस्टेंट क्या होगा, उसका रेट लॉ क्या होगा, उसी टाइम पे जो है वो रेट इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें, अब ये मैथमेटिकल ड्राइव करना हमारा मकसद नहीं है, हम केमिस्ट्री के लोग हैं, हम इतना एक्सटेंस से मैथमेटिक्स नहीं आता, बट दिस इज टू बेसिक। मगर फिर भी हमारा प्रॉब्लम अल्टीमेट मकसद क्या है, अल्टीमेट मकसद ये है कि हमें ये चीज़ पता हो कि जो क्वेश्चन ड्राइव की वो आपको एक्सप्लेन क्या करती है। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल है, रेट है, रेट का स्लोप। अब आगे हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। ये क्या थी? डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डिफरेंशियल जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन। अब हमने करना है इसको इंटीग्रेट टू गेट इंटीग्रल रेट लॉ। ठीक है, इंटीग्रेट क्यों करेंगे? टू कैलकुलेट इंटीग्रल रेट लॉ। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसका ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, ऑपरेशन करना होगा। फॉर दैट ऑपरेशन देयर मस्ट बी एन ऑपरेटर। जब आप वैसे किसी बॉडी का ऑपरेशन करते हैं तो डॉक्टर विल बी द ऑपरेटर। In this case, integral sign will be the operator. Mean integration will be the operation and that integral sign will be the operator. जिस तरह अब आपको पता है कि मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, प्लस लिखता हूँ, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? मीन कि यू हैव टू ऐड फ्यू थिंग्स। कैसे पता चला? साइन से इसने आपको ऑपरेट किया। ये बेसिकली ऑपरेटर है। जब आप 2 डिजिट्स 2 नंबर्स पे ये वाला ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो यू आर गोइंग टू एक्चुअली ऐड। अगर आप ये ऑपरेटर करते हैं तो यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट ऑल दैट नंबर्स। ठीक है ना? इसी तरह अब इंटीग्रेशन का जो साइन है वो क्या है? इंटीग्रेशन आपने करनी है तो इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है? ऐसे लिखते हैं, जो बेहतरीन साइन है वो ये होता है। ठीक है, तो ये एक ऑपरेटर है। इंटीग्रेशन क्या होती है? पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इंटीग्रेशन बेसिकली आप चीजों को सम अप करते हो, मगर लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली ये सम ही होता है। तो इस सम को हम क्या करते हैं? दिस इज फॉर 2 3 4 5 नंबर। जब इस सम को हम इलोंगेट कर देते हैं, क्या करते हैं? इलोंगेटेड सम, इलोंगेटेड एज, ये इसको पकड़ के ऊपर कहते हैं तो ये यूं हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रेशनल या इंटीग्रल साइन कम्स फ्रॉम सम, और सम मीन इलोंगेटेड सम। इलोंगेटेड सम मीन यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू सम अप। फिर फंक्शन होते हैं ना, तो समेशन कहाँ पे यूज होती है? ये इंटीग्रेशन यूजुअली फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए आप यूज करते हैं। एक होता है डिस्क्रीट फंक्शन, एक होता है कंटीन्यूअस फंक्शन। डिस्क्रीट फंक्शन ये होता है कि जस्ट यू हैव नंबर 1 2 3 4 5, यू हैव डिस्क्रीट नंबर्स, सर्टेन नंबर्स। तो उनको आप कैसे, अगर उनको ऐड करना तो क्या करेंगे? जस्ट यू विल डू द समेशन 1 2 3 समेशन 3। उसके लिए वो ये वाला आप साइन सुना होगा जो वो करते हैं। ठीक है, जब आपके पास कंटीन्यूअस आ जाए कि मीन डिस्क्रीट ना हो, मीन कि 1 to 2 मगर उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, मसलन 1.001 1.002 1.003 1.004, after a lot of numbers you will approach to 1.1। नौ पठान से शुरू होता है 1.1 प्लस 1.0001 1.10001, तो फिर बहुत सारे नंबर हैं। दिस सॉर्ट ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसे फंक्शन को
फिर आप कैसे सॉल्व करते हैं? थ्रू इंटीग्रेशन। अब पता चला कि इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, बेसिकली मकसद क्या है इसका। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन कब आता है? जब आपके पास कोई कर्व बनती है ना, जब कोई कर्व बनती है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका मतलब हुआ कि कर्व वगैरह हो, इस तरह की जो चीजें हो, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। आगे थोड़ा समझिए। चलिए, तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले जब डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो उसके बाद जब हम इंटीग्रेशन में आते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करना होता है। क्या करना होता है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये करना होता है। तो वो यहां पे क्या होगा? dx को एक साइड पे कर लें, a0 dt को आप एक साइड पे कर लें। अब मुझे कैसे पता चला कि ये वेरिएबल है? वेरिएबल भी जिसमें चेंज आ रही है। डी स्टैंड फॉर चेंज। वेरिएबल का क्या मतलब है कि जो वेरी हो रहा हो। डी क्या शो कर रहा है बेटा? चेंज इन व्हाट? इन एक्स, एंड चेंज इन टी मीन दिस टू टर्म्स विल वेरी। तो आपने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक हो ये बात? dx को अलग कर लिया और dt को, मीन कि ये भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, ये दोनों वेरिएबल बन गए। अब वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं? यहाँ पे जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट। जो यूजुअली इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे होता है, इक्वल के इधर इस साइड पे, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इस साइड पे होता है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हुई बात? अब इनको करना है हमने इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट का क्या साइन है? ये वाला। और अब मैं यहाँ पे एक्सटेंड करने लगा हूँ, तो आप मुझसे पूछने सर ये आपने क्यों किया? कि ये तो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट। वेरी गुड। कोई भी टर्म जो dt आपको बताएगा कि आपने वो वाली टर्म लिखनी है जिनमें t आता हो। ठीक है ना? dt में चेंज, वो वाली टर्म इंटीग्रेशन के साइन के अंदर लिखनी है जिनमें t है। और ये dx आपको क्या बता रहा है? आपने वो वाली टर्म लिखनी है जो कि जिनके साथ x हो। x के अलावा बाकी इक्वेशन y और 0 वो सारी क्या मानी जाएगी? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि 3x प्लस 4y, ठीक है, चलो ये छोड़ देना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं कहता हूं कि 3x dy, इसको इंटीग्रेट करें तो आप कैसे करेंगे? चेंज y वाली टर्म लिखनी है। ठीक है, अगर मैं यूं लिखता 3x y dy, फिर आप क्या करते हैं? ये करते हैं। ठीक है, 3x उसके लिए क्या माना जाता? कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं यूं लिखता फिर कैसे करते हैं? फिर आप यहां पे साइन लगाते हैं, क्योंकि अब आपने x वाली टर्म लेनी है। जहां भी x आता है, चाहे सिंगल है, माइनस x है, ये है, तो आपने ये लेनी है। अगर मैं यूं लिख देता फिर क्या करता? नहीं, ये n है ना, d है, तो आप a नॉट n d करते हैं। सो वो लास्ट वाला जो था वो एकदम बड़ा बता रहे। ये वाला? यस। हाँ, हमने dx इस चीज को देखा जिसके साथ d लिखा हो। ठीक है सर, इसमें वो जो ब्रैकेट के अंदर a माइनस x है, तो a को हाँ, ये बेसिकली एक पूरी टर्म बन गई ना, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। जब मल्टीप्लाई करेंगे x की, फिर याद रखो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके सेकंड क्या आता है, फिर करेंगे तो सब के साथ x आएगा। सही। ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हुई ना?
कि अब हमने इंटीग्रेशन साइन कहाँ से लगाना है, और ये बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। जब इंटीग्रेशन की जाती है तो उसी को सब का डेटा लेके बड़े चिल से कह रहे होते हैं कि वी डिड एक्सीलेंट, जब हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो वो फिर क्लियर। ओके, ये इंटीग्रेशन का पार्ट हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर इंशाल्लाह हम इसको आराम आराम से कवर करेंगे। अब हमें करना है जो नेक्स्ट क्रिटिकल पार्ट है वो है हाउ टू इंटीग्रेट दिस टर्म, इनको इंटीग्रेट कैसे करना है। अब उसमें ये है कि जो सिंपल टर्म्स है ना आपके, बेसिकली इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे का अपोजिट है। डिफरेंशिएट करना क्या होता है, आप किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में बांट रहे हैं, और इंटीग्रेट करना क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को आप सम अप कर रहे हैं। अगर तो सिंपल लिखा हो, मसलन इस तरह ये है dx लिखा हो, फिर तो हम ये d और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो x आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर dt लिखा हो तो फिर भी हमें यही मीनिंग्स हमारे पास है, क्योंकि एक ही डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन है तो उसको t ले लेते हैं। ठीक है, इसका रूल है बेसिकली, मगर आप अभी इसको क्विक रिस्पांस के लिए आप इसी तरह, अगर सिंपल लिखो, अगर इस तरह आ रहा है फिर आपने सिंपल नहीं करना, फिर आप यूं नहीं कर सकते। ठीक, यूं लिखो एंड ओके। ठीक है, अगर यूं लिखो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास तो यहाँ पे जो रूल है वो तो सिंपल है, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे लिमिट्स भी लगाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ बुक्स पे ना there are 2 or 3 different ways to solve this sort of equation। पहले हम एक कैसे करते हैं, फिर मैं दूसरा बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी तरीका हो आपको आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट बुक्स पे इंटरनेशनल बुक्स होती हैं जो आपको रेफर की हैं, किसी पे कुछ स्टाइल में होगा, किसी पे कुछ स्टाइल में होगा। यू मस्ट नो कि कौन सा भी है वो आपको रिजल्ट क्या मिलता है। पहले हम सिंपल वे से करते हैं, वो क्या है कि ये क्या हो जाएगा, x k नॉट t प्लस हम c या i लिखते हैं, i भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आप i लिखें, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लाते हैं, तो फिर हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड करना होती है। जब ये आप लेके आ गए तो आवर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वो उसके लिए हम लिमिट्स लगाते हैं। वो लिमिट्स क्या होती हैं, इनिशियल लिमिट्स। वो क्या थी, ये वाली, जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट क्या होगी बेटा, टाइम 0 तो प्रोडक्ट 0। हाँ, तो आपने लिखना है कि when time is equal to 0 at that time x will be 0। अब वो वैल्यू यहाँ पुट करें, जब टाइम यहाँ पे 0 पुट करेंगे और x की 0 तो क्या होगा, 0 is equal to k naught multiply by 0 plus I, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। This equation will become x is equal to k naught t। अब ये जो इक्वेशन है आपकी और ये वाली, इन दोनों में क्या फर्क है, अरे k नॉट इनटू 0 0 नहीं हो जाएगा, हाँ तो 0 हो गया ना, ओके सॉरी मैंने निकाला नहीं पड़ा। ठीक है, इसमें टाइम नहीं है, चेंजिंग टाइम नहीं टाइम है, एक्चुअली क्या है, दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और ये आपने आफ्टर इंटीग्रेशन लिया था, दिस इज द इंटीग्रल रेट लॉ। ठीक है, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है और ये इंटीग्रल रेट इक्वेशन। सर ये नीचे जो x is equal to k naught t, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये देखिए, ये पता लगा ये कैसे आ गया, नहीं सर ये भी पता लगा। अब आपने यहाँ पे x इक्वल टू k ना t प्लस i था, i हम कहाँ से लेके आए, आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन, दिस इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट,
we have to find the value of this integration constant. For this purpose, we have to apply some limits. These limits, what are these limits? These limits are actually initial limits. When there is no reaction, तो जब आपके पास टाइम जीरो होता है तो x की वैल्यू क्या होती है? जीरो. Mean when time is equal to zero, at that time x will be zero. अब टाइम और x की वैल्यूज यहाँ पुट करनी है आपने इस इक्वेशन में. टाइम क्या था? तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगी? और x क्या था? जीरो. तो i क्या बचेगा? जीरो. जब अब आपने i यहाँ पे आप पुट करना, i जब पुट करेंगे जीरो तो पीछे क्या बच जाएगा? x is equal to k naught. सर हम वेरिएबल में जीरो लगा के i को जीरो करें और उसी इक्वेशन में हम i को हटा रहे हैं क्योंकि वो जीरो है, लेकिन जो वो तो अच्छा वो इसको आप ऑपरेशन ले ले बाद में. ठीक है. अब आपको इस इक्वेशन में i की वैल्यू चाहिए. अच्छा तो वो कहां से निकालेंगे आप? ये एक अलग इक्वेशन है. जब आपने ये लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो फिर ये इक्वेशन जनरेट होगी. उस इक्वेशन से आपके पास इक्वेशन 3 आ गई. ऐसे में अब इसका जो दूसरा तरीका वारदात है वो ये है कि आप इनिशियली ही यहां पे dx k नॉट dt है, कुछ बुक्स पे जो लिखा होगा वो क्या करते हैं कि ये जो यहां पे हम लिखते हैं लोअर लिमिट, क्या लिखते हैं, और यहां पे लिखते हैं अपर लिमिट. x है, x कहां से कहां चेंज हो रहा होता है? जीरो से x ही हो रहा है ना. और टाइम कहां से होता है? जीरो से t, है ना. जब इंटीग्रेट करते हैं तो x आता है, इसको हम यूं लिखते हैं 0 टू x, और ये हम लिखते हैं t 0 टू t. अब क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है. अपर लिमिट लोअर लिमिट. अब यहां पे x की वैल्यू क्या है? x माइनस 0. x की वैल्यू पुट करनी है ना आपने. यहां पे अपर लिमिट में x की वैल्यू x है, लोअर में 0 है. यहां पे क्या हो जाएगा? t माइनस 0 हो जाएगा. इस पूरी टर्म का फिर क्या होगा? x, और इसको हम यूं लिख सकते हैं at माइनस a नॉट मल्टीप्लाई बाय 0. तो ये क्या होगा? x a नॉट t, और ये तो 0 हो जाएगा सर. फिर भी इक्वेशन आ गई. अब इनमें से जो अच्छा लगता है आपको वो तरीका है. उस वाले में तो आपने कांस्टेंट लगाया ही नहीं है. हाँ इसमें कांस्टेंट नहीं होगा. कौन सा? नहीं आया कांस्टेंट है, वो तो वहां से जीरो है ना. जब लिमिट्स लगा दी तो फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है. अच्छा हाँ से जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया तो फिर लिमिट्स लगाना है. सर अगर हम उस मेथड से करते हैं तो सबसे पहले हमें पहले जो लिमिट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. हाँ जी. इक्वेशन फिर वो इक्वेशन का फुल करके फिर वैल्यू. यहाँ पे अब यही है ना, बात एक ही है. हाँ सही. मगर यहाँ पे आपने लिमिट्स लगा दी. तो कुछ बुक्स में इस तरह लिखा हुआ मिलेगा. अब जिन बच्चों को ये आसान लगता है वो कर ले, जिनको ये इजी लगता है वो कर ले. मेरे ख्याल में ये इजी है. कंफ्यूजन नहीं है. कंफ्यूजन नहीं है. बात वो है कि मगर आप ये बच्चा था इसको यहाँ पे बार बार एक इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकालना मुश्किल लगा, इसके लिए ये आसान हो गया. हाँ ठीक है ना. अब कोई भी आप मेथड यूज करें आपका सॉल्यूशन ये आता है. ये बहुत बेसिक है, जो हम बिल्कुल बेसिक लेवल के बच्चों को पढ़ाना है वो हम ये पढ़ाते हैं. ठीक होगी बात? सर ये भी है. सर इसमें कोई लाइक 0 और x के अलावा कोई वैल्यू से एक एग्जांपल अगर करें तो वो ज़्यादा अच्छा ना आएगा. वो भी हो सकती है. एक करते हैं वो उसका करेंगे फिर बाद में करते हैं. वो भी हो सकती है.
अगर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर आप यहाँ पे 0 to 2 लिखते हैं, ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसको मैनेज कर दूं? यस तो यहीं पे अगर आप 0 to 2 लिखते हैं और d 0 to 4 लिखो, तो फिर क्या होगा ये 2 minus 0 और वो k नॉट 4 minus 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा k नॉट 4 मल्टीप्लाई बाय k नॉट 0 माइनस, ठीक है, तो ये आएगा 2 4 k नॉट माइनस 0, 2 is equal to 4 k नॉट, ये हो जाएगा 1 is equal to 2 k नॉट will be equal to 1 over 2 है, फिर इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आप कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, हमने किया सर वो थोड़ा सा था। अरे ठीक है ठीक है। अब ये आपके पास आ गया x इक्वल टू kg। हम फिजिकल केमिस्ट्री वाले ना उस वक्त तक स्कूल नहीं लेते जब तक हम ग्राफ ना बनाते, ठीक है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है, जब तक वो नहीं बनाना केमिस्ट्री का कोई फायदा नहीं है। आपको पता है इस दफा जो लेक्चर का टेस्ट हुआ है केमिस्ट्री का, उसमें 80% फिजिकल केमिस्ट्री बाय चांस, और उसमें क्या था कि यार इक्वेशन की न्यूमेरिकल से ज्यादा ऑर्गेनिक के भी उन्होंने इस तरह एडजस्ट किया था, उससे न्यूमेरिकल दे दिए। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री आई हुई थी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आई हुई थी, क्वांटम के क्वेश्चन थे, क्वांटम विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ये आ गया x इक्वल टू kT। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पता है आपको? यस सर है? यस सर उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसकी मेरा वो एक लेक्चर है, वो पढ़ा होगा वहीं पे, जहाँ पे आपको डिवाइड में जाएंगे ना, वहाँ पे लिखें इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, उसको आज आपको बहुत से सुनना जाएगा, उसमें सारी चीजें डिटेल में। मॉडल पे पढ़ा होगा नहीं मॉडल पे नहीं है, वो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे। हाँ जी, ये लेक्चर मैंने पहले भेजा है ना आपको, उसी के साथ ही लेना होगा। x इज इक्वल टू k नॉट t। अब आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखना है, वो क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? इंडिपेंडेंट m क्या है? c क्या है? इंटरसेप्ट। अब क्या होता है कि y आप y एक्सिस पर रखते हो और x जो है आप x एक्सिस पे। x और y का ये मतलब नहीं है कि अगर y है तो y एक्सिस पे आएगी, नहीं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो y एक्सिस पे आता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x एक्सिस पे आएगा। क्लियर? और यूं ये इक्वेशन बनती है आपके पास, ये ओरिजिन है, तो ये कुछ यूं इक्वेशन बनेगी। थोड़ा सा जब उसमें ऊपर जाने से स्टार्ट किया, ये जो चीज होती है ये आपका m होगा से हो, और ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? c, इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट 0 भी हो सकता है। जब इंटरसेप्ट 0 होगा ये इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू mx, है ना? तो उसका ग्राफ क्या बनेगा? फिर वो u y x ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्या आपको ये फॉर्म ये लग रही है? यस हैं? लग रही है ना? यस तो इसका ग्राफ बनाओ। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा इस इक्वेशन में? x। इसको किस एक्सिस पे लेंगे? y एक्सिस पे। लो शाबाश। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास एक शक्ल सूरत बन के आएगी, x और नीचे क्या होगा? t। आप टाइम को वेरी कर रहे हैं और उसके साथ x वेरी हो रहा है,
K नॉट इसका अब gradient C की वैल्यू क्या है यहाँ पे? Zero. K. C की Zero. जीरो जीरो, तो इसका मतलब है ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और अब आप अपने मन से एक दफा ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है? ये जीरो है और ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये x की मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, x प्रोडक्ट है ना, ठीक है? स्लोप क्या होगा? K नॉट ए नॉट। तो यहाँ पे हाँ जी ग्राफ बना आ गया, ठीक है? अब ये है आपके पास रेट कांस्टेंट, आप यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है? अब अगर मैं एक लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ, एक लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ, ये रिएक्शन 3 है, ये रिएक्शन 2 है और ये रिएक्शन 1 है। इन तीनों में से कौन सा रिएक्शन स्लो है? ये आप बस मैंने ये ग्राफ आपके सामने है और आपने बताना है कि कौन सा रिएक्शन स्लो है। थर्ड वेरी बैड। फर्स्ट हो, ये देखो तो थर्ड का क्यों का स्लो मैंने पूछा है, थर्ड क्यों का पहले मुझे उसका रीजन बताइए, किसने कहा था? आपने कहा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसका कंसंट्रेशन बढ़ने में, मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है। नहीं, कहाँ जा रहा है? टाइम कम लग रहा है, कम है, कम लग रहा है। वन तक सबसे ज़्यादा टाइम को आप कैसे ले रहे हो? मुझे समझ आ गई टाइम को आप क्यों ले रहे हो? टाइम को मसला अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ करता, यहाँ रखा, आप तो सबका टाइम सेम है ना, तो फिर रिएक्शन कौन सा स्लो होगा? वन ही स्लो है। क्यों? कंसंट्रेशन कम है, प्रोडक्ट्स कम है सर इसमें। सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इसमें कम है और टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कि अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से आपको रेट पता लग जाता है। रेट का सर ये टाइम हाँ, आप बेटा रेट यूज करें, आप हमारी क्लास में हैं, ये बताया ना हमने स्लोप देखना है, रेट कांस्टेंट देखना है भाई, रेट कांस्टेंट देखना है कि जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा वो रिएक्शन फास्ट होगा, जिसका रेट कांस्टेंट कम होगा वो रिएक्शन स्लो होगा। और रेट कांस्टेंट हमें कहां से पता चलता है? स्लोप से। ये नॉट स्लोप है ना, जिसकी स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? जिसकी ज्यादा, ग्रेटर स्लोप greater will be the rate constant, lower the value of slope lower will be the rate constant। और जिसका rate constant थोड़ा है वो रिएक्शन स्लो। तो जूं अब आप देखें ना, अब आप स्लोप को कैसे देखते हो? आप बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, ब्रिज आ जाता है, आप कहते हो यार ये इसका स्लोप ज्यादा था, मुझे ज्यादा ऊपर जाना पड़ा और इसका स्लोप का मैं बड़ा स्मूथली में गया हूँ। आप बताओ स्लोप किसका ज्यादा है? 3 वाला। जो जितना y एक्सिस इस लाइन के करीब होता जाएगा उसका स्लोप बढ़ता जाएगा, जो जितना x एक्सिस के करीब होगा उसका स्लोप कम होगा, उसका स्लोप कम होगा। तो 1 is the slowest one among these three and third one is the फास्ट। अब अगर मैं बच्चों से क्वेश्चन इस तरह भी पूछता हूँ एमसीक्यूज में, इस तरह भी पूछ लेता हूँ कि भाई K1 जो है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² पर सेकंड, ठीक है? K2 जो है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 सेकंड, K3 जो है वो है 3 2 पॉइंट आप यूं कर लो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 सेकंड। तो बताओ आपने अप्लाई करना है कि इसमें से कौन सा रेट किस लाइन का है? इस तरह का क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जस्ट अंदाजा करें, फिर आपने कहा हमें तो डेटा नहीं गिवन, हम कैलकुलेशन कैसे करें, क्या करें? तो फिर आपको बताना है कि इन तीनों ऑपरेशन में से
इसके लिए कौन सी होगी, इसके लिए कौन सी होगी, इसके लिए कौन सी होगी? भाई वो केस के लिए K2 3 के लिए फिर सेकंड वन इज फिर थर्ड। चलो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ ऐसे, आप बताओ इनको आप रिप्लाई करना है कि ये K1 है, K2 है, K3 है या क्या है, बताओ। ये वाला किसका है, इसका, इसका वो तो मैंने पहले लिख दिया था, इसलिए रीजन बताओ। वैसे भी सर सबसे जो सबसे जो कम है जो स्लोप की वैल्यू कम है, ये -2 है, ये -1 है, ये भी -1 है, मगर ये 3 से ग्रेटर है, 6 है, तो ये सबसे फास्ट है, तो ये इसका होगा, तो इसको हम 3 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 1 कहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछो, देखो ना कितनी सिंपल सी बात है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह के आपके एग्जाम में या वो अगर आ जाए एंटी टेस्ट में, तो आप भी कहेंगे तो स्टार्टिंग में पढ़ाया ही होगा। हालांकि ये सारी चीजें आपने पहले भी शायद कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, मगर इस तरह नहीं पढ़ी होंगी, आई एम श्योर। इस तरह क्वेश्चन जी सर, इस तरह क्वेश्चन रहते थे पढ़ाते नहीं, क्वेश्चन देते थे। तो इस तरह आप बता सकते हैं। अच्छा, अगर कोई स्टेप, अगर कोई रिएक्शन 3 स्टेप्स में हो रहा है, अब जो है ना, ये आपको पता लग जाएगा कि ए ग्रेड स्टूडेंट कौन सा होगा। अब अगर कोई रिएक्शन 3 स्टेप्स में हो रहा है और उसके स्टेप ये है, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें मोर देन 1 स्टेप्स होते हैं, हर स्टेप का आपने रेट कांस्टेंट निकाल दिया। अब बताएं कि वो रिएक्शन किस स्टेप पे डिपेंड करेगा। K1 पे, K1 पे, K2 पे, K3 पे, K1 पे करेगा। Yes. क्यों? Slow अब आपने सारी रीडिंग्स पढ़ी हुई हैं, मगर आज आज आपका फास्ट होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह क्योंकि वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप हो गया। अब तो सीधी तो सारी पढ़ी हुई है ना, अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सपोज कर रहे हैं हम। तो इस तरह अब आपको पता लग गया होगा कि वो जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका रेट क्या है, ये। तो फिर हम हर चीज़ का रेट निकाल के, एलिमेंट्री स्टेप्स का रेट निकाल के, मीन कि ये वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है सपोज कि जिसमें 3 एलिमेंट्री स्टेप्स हैं। आपने हर एलिमेंट्री स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, रेट कांस्टेंट निकाला, जिसका रेट कांस्टेंट सबसे स्लो हुआ उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप का। क्यों स्लोएस्ट स्टेप ही हम क्यों लेते हैं? जी बोला स्लोएस्ट स्टेप हम क्यों लेते हैं, फास्ट क्यों नहीं लेते यार? वो विंटर की छोड़ो, वो तो बचपन की बातें हैं। सर ये स्टार्ट जो होता है स्लोली होता है ना, स्टार्ट स्लोली होता है, सो दैट यू आर सेइंग कि द होल रेट विल डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब नहीं क्या होता है इसको जो वो होती है नहीं जो हम ग्राफ डालते हैं ना, ऊपर जो एनर्जी होती है। अच्छा, स्लोएस्ट स्टेप के बेटा एक बात स्लोएस्ट स्टेप के मीनिंग्स क्या है, बेसिकली उसकी रूप क्या है? मीन कि वो स्टेप एक्टिवेशन एनर्जी नो सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो सबसे स्लो नहीं, स्लोएस्ट स्टेप मीन कि वो स्टेप जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में। ये तो सही है, वही बात है। अब जब इससे अगली बात करूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी स्लोएस्ट स्टेप क्यों लेते हैं। तो फास्ट स्टेप क्या होते हैं कि जो जल्दी हो जाते हैं, स्लोएस्ट वो है जो कि सबसे लेट होता है, सबसे लेट होता है। मसलन मैं कहता हूँ कि एक रिएक्शन है, उसको 10 मिनट्स, उसका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो 3 सेकंड्स में होता है। मैं अब इसी तरह उसका फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप वो 3 सेकंड्स में होता है, सेकंड स्टेप 10 सेकंड्स में होता है, और जो उसका थर्ड स्टेप है वो 10 मिनट्स में होता है, ठीक है। तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप 10 मिनट्स जब होंगे ना, उस वक्त तक 3 सेकंड भी हो चुके होते हैं और
10 सेकंड्स भी हो चुके होते हैं उस टाइम तक। इसका ये मतलब नहीं है कि 10 मिनट और 13 सेकंड लगेंगे रिएक्शन में, नहीं, लगेंगे 10 मिनट से, मगर उन 10 मिनट्स के होते होते बीच में ये जो फास्ट स्टेप थे ये हो चुके होते हैं। सर लेकिन बहुत सारे रिएक्शन में पहला जो स्टेप होता है वो स्लोएस्ट होता है। यार ये जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे रिएक्शन सारों में नहीं होता, बहुत सारे आप कह रहे हैं सारों में नहीं होता, तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे ये वाली चीज़ अप्लाई होगी। तो जनरली यही वाली चीज़ होती है। अब ये आपकी किस्मत है कि आपका फर्स्ट स्टेप तेज निकल है या स्लो निकल है, सेकंड निकल है, थर्ड निकल है, फोर्थ निकल है। मगर स्लोएस्ट स्टेप लेने का मकसद यही होता है कि उस वक्त तक, उस टाइम तक और बाकी सारे रिएक्शन हो चुके होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्लो स्टेप होता है ना, उसमें आप चेंजेस एक्सपेरिमेंटली अच्छी मेजर कर सकते हैं, जबकि फास्ट स्टेप में आप जो चेंजेस है ना वो अच्छे तरीके से मेजर नहीं कर सकते, जिसलिए हम स्लोएस्ट स्टेप को रेट टर्मिंग स्टेप कहते हैं कि जिस पे आपका नजर लगा जाता है। क्लियर? चलो इसके भी इसके तकरीबन 3 to 5 एमसीक्यूज बनते हैं ये रेट टर्मिंग और इस चीजों से जो आएंगे इंशाल्लाह आपको। हाँ जी, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं आपके पास, मुझे लास्ट टाइम भी बात हुई थी, फोटोकेमिकल रिएक्शन सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, मोस्टली फोटोकेमिकल रिएक्शन। सपोज कि आपके पास एक एग्जांपल है H2Cl2 HCl बनता है, ये HU मीन एनर्जी, एनर्जी मीन लाइट, फोटोन की एनर्जी। तो ये जो रिएक्शन होता है ये यूजुअली आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन देता है। N2O5 तो हम कहते हैं NO2 1/2O2, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। एक और रिएक्शन है ये डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इक्वेशन तो ये है, इट मींस कि अगर मैं कहूं आपको कि ये भाई सारे जीरो ऑर्डर है तो इनकी रेट इक्वेशन क्या बनेगी? देखो वो जो रेट लॉ लिखते थे, अगर मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इनकी रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? याद है ना उसका जो हमने सेकंड लेक्चर में किया था, जो कि बेसिकली फर्स्ट लेक्चर का था। सिंपल तो आप कैनेटिक्स पढ़ते रहते हैं ना। अब आप ये 370 कोर्स है ना, एडवांस लेवल का कोर्स है। ये वाला प्लस 1/2O2 हाफ ऑक्सीजन, अगर इसको आप होल इक्वेशन लिखें तो वही 2 बनती है। अगर आप होल नंबर में लिखें, ठीक है, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। हाँ जी, ये मैंने कह दिया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। तो इनकी रेट इक्वेशन क्या बनेगी? तो इसकी ये बनेगी कि आप 0 लिख लें, H2 Cl2 0, ठीक है। जब हमने कह दिया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी क्या बनेगी? रेट N2O5 0, ठीक है। इसकी क्या बनेगी? रेट K0 NH3 0, क्योंकि हमने जीरो ऑर्डर कह दिया। तो ये क्या, ये अब क्या बता रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये जो डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया है, ये अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, कोई और चीज है जिसपे डिपेंड करती है। इसमें इट मीन ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आ जाए तो ये जो डीकंपोजिशन है इस कंपाउंड की, वो भी इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है।
इसका रेट लिखने का क्या मतलब है कि ये जो कंसंट्रेशन है वो H2 और Cl2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स भी हो गई, और चूंकि हमने उनको जीरो टर कह दिया है तो इसलिए उनके रेट फिर आप नहीं लिखेंगे। अब इसी से फिर आगे न्यूमेरिकल पैदा होते हैं, जनरेट होते हैं। उनकी पैदाइश कैसे होती फिर कि हम रिएक्शन देंगे, बताएंगे जी कि अमोनिया जो है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, कॉलम ये था, हमने कैटलिस्ट ये यूज़ किया, पहले कंसंट्रेशन ये हुई ये हुई ये बताएं कि उसका रेट क्या होगा। आपने कहना सर बिकॉज इट इज decomposition of ammonia is zero order reaction, it does not depend upon the concentration of ammonia। ठीक है ना, वो बड़ी लंबी स्टेटमेंट होगी, आंसर उसका एक लाइन में होगा, है वो आपको घुमाने फिराने के लिए आपको दिमाग में सेट करवाएंगे तो कभी मरी की तो आंसर जो है वो आपका ऐसे ही होगा। ठीक है, इस सारे मटेरियल को इरेज कर दूं। यस सर, जी बेटा, जो हम के नॉट की वैल्यू निकालते हैं ठीक है, यहाँ तो dx और dt है, जो x है वो तो डिपेंड करेगा प्रोसेस के रिएक्टेंट पे, जो हम x यहाँ पे लिख रहे हैं नहीं प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, x तो है ही प्रोडक्ट। रेट, हम रेट की बात कर रहे हैं, रेट है dx और dt ना, हाँ जी, तो अगर हम उसका x देखें यही तो हमने कहा ना कि हमने मुख्तलिफ चेंजेस देखी, जब सारी चेंजेस को देखा एट एंड में ये पता चला कि वो उस पर डिपेंड नहीं है, वैल्यूज तो आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, लिखो फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन क्या बनेगी, अब उसके हिसाब से डी एक्स ओवर डी टी, फर्स्ट ऑर्डर है ये मान लिख लो है ए माइनस एक्स रेस्ट टू पावर। हाँ जी ठीक है, पहले क्या लिखा था यहाँ पे जीरो लिखा था ना, यहाँ पे जीरो लिखा था है ना, अब चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम नोट लिख सकते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसकी, इसको अब इंटीग्रेट करना है, क्या करूँ सबसे पहले क्या करूँगा, वेरिएबल सेपरेट कर लो, तो करो भाई कौन कौन से वेरिएबल है जो सेपरेट करने हैं आपने, डी को उधर जाकर मल्टीप्लाई करना और शाबाश, और फिर बाद में वो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे डी के साथ दोनों साइड। करो बेटा, dx इधर लिखोगे, a1 ये लिखोगे, a माइनस एक्स ये लिखोगे और dt ये लिखोगे। ठीक है, इससे आगे भी एक और भी अरेंज होना है, इधर तो इस तरफ में तो x है ना, ये इधर आ जाएगी x के साथ है ना, तो ये क्या हो जाएगा स्टेप dx ओवर ठीक है, इसको आप लोग भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, अब देखो ना x वाली और उसके वेरिएबल वाली जो सारी टर्म एक साइड पे आ गई और दूसरी टर्म्स एक साइड पे आ गई। अब ये तो सिंपल है ना, ये तो सिंपल है ना, मगर दिस इज नॉट सो सिंपल है, इस पे अब आपको थोड़ी सी मगजमारी करनी है, तो वो कैसे करेंगे हम, अब इसका एक फॉर्मूला है रेगुलर लेके, हमारे पास तब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना
ठीक है, तो इसका रूल ये है इंटीग्रेशन करने का, आपने इस वाले टर्म का लेना है नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग लेना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, ये जो चीज है ना इसका डेरिवेटिव लेना है, मीन कि डी ओवर डी ऑफ एक्स, और ये वाले जो टर्म है वो क्या है एक्स, इसको यूं लिखना है, दोबारा समझो, ये वाले जो टर्म है उसका आपने नेचुरल लॉग ले लेना जो भी आती है, फिर आपने उसका ये वाले जो टर्म है पहले इसका नेचुरल लॉग लेना है, फिर इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, इसको फिर हम यूं भी लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या है ओवरऑल क्या आ जाएगा, ठीक है, मगर आपको बुक्स पे क्या लिखा हुआ मिलेगा वो यूं ही मिलेगा, मगर ये प्रॉब्लम उस वक्त बनता है जब हमारे पास सिचुएशन ये हो, फिर हमें इस डेरिवेटिव की अहमियत का पता चलता है, ठीक है। अब अगर इसी को ध्यान में रखते हुए इसको मैं किस कर दूं, इसी को ध्यान में रखते हुए आप इसको इंटीग्रेट करें, ये टर्म है आपकी, इसको ब्लैक से लिखना चाह रहा हूं 1 ओवर dx, तो ये पूरी टर्म है आपके पास, पहले इसका क्या लिखेंगे आप नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स, फिर आपने क्या करना था इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है, वहां पे x था, अब यहां पे a माइनस एक्स, क्लियर हुई बात, वही टर्म नीचे वाली उसका नेचुरल लॉग, फिर आपने उसी टर्म का क्या लेना है डेरिवेटिव, ये तो ऐसे ही था, अब इसका जो डेरिवेटिव है वो लेंगे, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, इसको आप खोल दें, मतलब ये क्या होगा, इसको आप यूं लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे a लिख सकते हैं माइनस डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे x लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक कांस्टेंट टर्म है, अगर x होता, अब चेंज इन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x क्या आंसर आएगा, कुछ चेंज होगी उसमें, चेंज इन कांस्टेंट, चेंज इन एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x क्या आंसर आएगा 0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, चेंज इन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, और इसका आंसर क्या है 1, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, इसको अब अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन होगी ना सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो आंसर क्या आ गया इसका, ये किसका आंसर है इस इंटीग्रेशन का, जी सर वो जो सेकंड स्टेप है वो एक बार दोबारा बता दें, ये वाला, सर वो इसके ये वाला, ये वाला सर, लेकिन इसकी ये वाला। सेकंड है dx ओवर dx, ये मुझे नहीं समझ, हाँ ये किया ना, अब ये d है ऊपर है, इसको हमने a से भी मल्टीप्लाई कर दिया माइनस x से भी मल्टीप्लाई किया, अब चेंज इन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है ना, सपोज कि आप 4 ले लो यहाँ पे, चेंज इन 4 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x क्या होगा, कुछ भी नहीं, कांस्टेंट नंबर है ना, तो वो वैल्यू क्या आ गई 0, और ये क्या बना dx और dx ही बन गया ना, तो उसका आंसर बना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k1t प्लस क्या लिखूंगा i, अब i की वैल्यू निकालो जल्दी जल्दी, और फिर इसमें पुट करनी है आपने,
3 मिनट्स है ताकि फिर हम इसको वाइड करें। I की वैल्यू निकालें, then you need to put that value of I in this equation to come up with integral rate equation. I के लिए क्या क्या हम यूज करेंगे लिमिट्स जी, इनिशियल कंसिडरेशन वो क्या है, x को 0 पुट करेंगे और इस इक्वेशन में टाइम को 0 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस I will be equal to माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। इस पॉइंट की समझ आ गई है जी? ये इस लेक्चर में थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी आपको, इंटीग्रेशन यूज हुई ना, आगे आसानी आप पहले से आसानी हो गई। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर करें तो क्या आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस x इज इक्वल टू k1t माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है मैंने? यस आगे ठीक है ये ठीक है यस। शाबाश। अब ये भी इक्वेशन है, मगर मैथमेटिक्स में हम अक्सर ये देखते हैं कि जो इक्वेशन स्टार्ट होती है वो पॉजिटिव साइन से स्टार्ट होती है, जस्ट टू मेक इट ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अदरवाइज ये भी ठीक है, नो इशू एट ऑल। अब क्या करते हैं कि आपके प्लस प्लस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना? लॉग की एक प्रॉपर्टी है, जो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं वो ऐड हो जाती हैं लॉग में, और जो माइनस होती हैं वो क्या होती हैं डिवाइड। तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, है ना? ये प्रॉपर्टी पता है आपको लॉग की? यस। बस यूं लिखा होगा, तो इसको मतलब x मल्टीप्लाई y लिखो, तो इसको क्या करेंगे और अगर x डिवाइड बाय y लिखो तो क्या करते हैं, और इसको फिर हम लिख लेते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी है। तो आज हम नाम बस करते हैं, तो ये आपकी इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है, विद स्लोप क्या होगा इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, तो ये इक्वेशन इसका ग्राफ कैसे बनेगा 0 से मगर डिफरेंस कहाँ पे है, जीरो ऑर्डर में यहाँ पे सिर्फ x था, मगर अब आपके पास ये नेचुरल लॉग a है t और 0 से शुरू हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और एक्सपेंड करके इसके साथ बड़ी अच्छी तरह खेलेंगे। ठीक है।